الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن أبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. آمين. Buddha says, "Oh Nanda, I am not first Buddha and I am not last Buddha, but a Buddha will come after mine. His name will be Maitreya." Isa says, "I will pray the Father, He shall give the another comforter. After that, I will not talk much with you, because the Prince of this world comes. His name will be Muhammad." یہ بائبل اور بودھزم کی عبارت. بودھزم اور بودھرم بائبل میں کرسچن عیسائی. ذرا ہندو بھائیوں کی پوتر گرنتھ کی طرف آتا ہوں. اوم بھوربھوسوہا تتسویتروریण्यं بھرگو دیوस्य دھیمہی धियो यो न प्रचोदयात्. एतस्मिन्नन्तरे मलेक्षाचार्येण समन्विता महामतिहयाता शिष्यशाखा समन्विता अज्ञानि हेतुकिरत मोहमदान्धिकारं नाशं विधायन् एतदोदयते विवेका. ऋग्वेद यजुर्वेद. हिंदुइज्म की या हिंदुत्व की दो किताबें. वैसे तो 4 वेद हैं और चारों वेदों में जो प्रथम श्रेष्ठा, जो अव्वल पोजीशन जिसको हासिल है वो है ऋग्वेद. ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये 4 वेद. और चारों वेदों में जो पहला दर्जा है वो ऋग्वेद को हासिल है. जैसे मुसलमानों के यहाँ 6 किताबें सियासत्ता कहलाती हैं हदीस की, और उन 6 हदीसों की किताबों में अव्वल पोजीशन बुखारी शरीफ को हासिल है, ऐसे ही हिंदुत्व के अंदर ऋग्वेद को अव्वल पोजीशन हासिल है. यहाँ मुझे ये बताना मकसद है
کہ مجھے جو رہبر ملا، مجھے جو گائیڈ ملا، مجھے جو نبی ملا، مجھے اللہ نے جو رسول دیا، وہ اتنا مبارک ہے، اتنا پاکیزہ ہے، اتنا اعلیٰ اور عرفہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، آل ورلڈ کے اندر، دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب میں، یہ میرا چیلنج ہے کہ دنیا کی تمام مذاہب میں میرے نبی اکرم کا نام کسی نہ کسی شکل میں آپ کی پیشین گوئی اور بھوشیاوانی ضرور ملتی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ مسلمانوں کو اپنی کتابیں پڑھنے سے فرصت نہیں، وہ غیروں کا مطالعہ کیا کریں گے، اور خود ہم نے اپنے نبی کی ہی تعلیمات کو نہیں سمجھا، وہ قوم جو اپنے نبی کی تعلیم کو خود نہ سمجھ سکی، وہ غیروں میں کیا پرچار کر سکے گی۔ ہمیں تو بحث کروا لیجئے کہ آمین بولنا چاہیے یا نہیں، رفع الیدین کرنا چاہیے یا نہیں، آئیں بس اس چیز میں ہم نے امت کو فرقے فرقے بانٹ دیا، کہتے چاروں پر۔ عجیب معاملہ ہے، قرآن نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، قرآن کہتا ہے ایک راستے پر آؤ، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ کی رسی کو تم سب مل کر، یعنی کوئی ایک راستہ ہوگا نا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، کیا کہا تم سب مل کر، لیکن یہاں ہم کہتے ہیں چاروں پر حق ہے۔ بہرحال ہم نے کوئی تنقید نہیں کرنا، ہمیں تو صرف اتنا بتانا تھا کہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے اور آپ کے درمیان آئے تھے، یعنی ایک آخری پیغمبر بن کر، جو نبی خاتم النبیین بن کر، آپ کی بشارت کس طریقے سے غیروں نے دی ہے، دوسروں نے دی ہے۔ مسلمانوں کے جو حالات ہیں موجودہ دور میں، اس سے پوری دنیا واقف ہے، اور ابھی آپ نے محترمہ میمونہ بہن کی زبان سے سنا ہے، گرچہ بیچاری کی آواز ساتھ نہ دے سکی، ورنہ بہت اچھا ٹاپک تھا، بہت اچھا موضوع تھا کہ مسلمانوں کو اس دور میں عمل کے میدان میں آگے بڑھنا چاہیے، میدان عمل میں، یعنی ہماری تباہی کے، ہماری بربادی کے جو ہمیں دن دیکھنا پڑ رہے ہیں، گاجر مولی کی طرح ہمیں جو کاٹا جا رہا ہے، اس کا مین پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چھوڑ دیا، اور خود آج میں اپنے ہندو بھائیوں سے کہوں گا، میں جانتا ہوں کہ ان کی تعداد کثرت سے ہے اور آئے ہوئے ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ اپنے ویدوں پر عمل کر لیں، ہم قرآن کی بات نہیں کر رہے ہیں، اپنے وید پر عمل کر لیں تو ہندو مسلم کبھی رائٹ ہو ہی نہیں سکتا، ہندو مسلم کبھی جھگڑا ہو ہی نہیں سکتا، مندر مسجد کا معاملہ کبھی سامنے آ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ہم نے اور ہمارے پنڈتوں نے وید کی تعلیم کو چھوڑا، اور جب وید کی شکشا کو ہندو بھائیوں نے چھوڑا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی کو قرآن دے کر بھیجا کہ اے نبی، میں تجھے کوئی نئی دعوت دے کر نہیں بھیج رہا ہوں، بلکہ تو وہی دعوت لے کر جا رہا ہے جو دعوت تو اس سے پہلے اور بھی انبیاء کرام لے کر گئے تھے، نوح ہیں، موسیٰ ہیں، عیسیٰ ہیں، ابراہیم ہیں، اسحاق ہے، یعقوب، جو لوگ یہ دعوت لے کر گئے تھے وہی دعوت اے نبی تم بھی لے کر جا رہے ہو، کوئی نیا مذہب لے کر نہیں جا رہے ہو۔ فرق اتنا ہے کہ لوگوں نے ایکیشور وادیت کے اندر بہوئیش پوجا کو سملت کر دیا، یعنی ایک اللہ کی اپاسنا کے بجائے انہوں نے کئی اللہ کی اپاسنا، معبودوں کی اپاسنا کرنی شروع کر دی، اور جب اس توحید میں، اس ایکیشور وادیت میں جب فرق آیا اور اللہ کی توحید کو لوگوں نے بگاڑا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتم سنویدھان، لاسٹ لا، قانون دے کر بھیجا۔ توحید کا جہاں تک تعلق ہے اس کو ذرا آپ سمجھیے اور دیکھیے، ہندو دھرم کی ایک کتاب ہے منوسمرتی، اور حوالے کا ذمہ دار میں، کسی کو شک ہو تو ہمارے اسٹیج پہ آ جائے، کوئی گیانی ہو تو آ جائے، تاکہ نکٹ آنے میں یہ ہوتا ہے کہ سمجھانے اور سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، یا تو منوا لو یا مان جاؤ، اس چیز میں آسانی ہوتی ہے، اور ہم تو بڑے اصولی بات کہتے ہیں کہ اگر یہ کتاب میں ہو تو مان جاؤ، نہ ہو تو ہماری بات واپس کرتے ہیں۔ کتاب تمہاری، لکھنے والا کوئی مسلمان نہیں، آپ کا ہے، کتاب آپ کی، پریس آپ کی، لکھنے والا آپ کا، چھاپنے والے آپ، کاغذ آپ کا، سیاہی آپ کی، قلم آپ کا، ساری چیزیں آپ کی، لیکن افسوس یہ ہے کہ پڑھنے والا ایک غیر ہے، بتانے والا ایک غیر ہے، لیکن کیا
अब्दुल्लाह इब्न सलाम जब इस्लाम कबूल किए यहूदियत से, तो उनकी कौम को यकीन नहीं आया था। अल्लाह के नबी ने कहा था कि आए यहूदियों, तुम्हारी किताबों में मेरा नाम है। उन्होंने मना किया। कहा अल्लाह के नबी ने कि अगर तुम्हारी किताब में मेरा नाम हो तो क्या करोगे? कहने लगे हम इस्लाम ले आएंगे। आपने अब्दुल्ला इब्न सलाम को बुलाया, जो यहूदियों के बहुत बड़े आलिम रह चुके थे। कहा अब्दुल्ला, तुम तो कहते थे कि मेरा नाम उनकी किताबों में तौरात ज़बूर में है, कहाँ है? ये तो मना करते हैं यहूदी। तो अब्दुल्ला इब्न सलाम ने कहा कि किताब खोलो। जब यहूदियों ने तौरात खोलना शुरू कर दी तो कहा कि फला फला सफा खोलो। जब खोल दिया तो कहा कि जहां नाम था वहीं पर यहूदियों ने उंगली रख ली, हाथ रख दिया। तो अब्दुल्ला इब्न सलाम ने कहा हाथ हटाओ। जब हाथ हटाया गया तो कहा गया ये है मोहम्मद, ये है अहमद, ये है अल्लाह के नबी का नाम। तो जिस तरीके से उन यहूदियों ने नबी अकरम के नाम पर उंगली रखी, हाथ रखा था, उसी तरीके से हम कोई वेदों की तालीम देने नहीं आए और ना आप ये कहने आए कि वेद भी आसमानी किताब है, बल्कि सिर्फ ये बताने आए कि जिस तरीके से यहूदियों की किताब पर यहूदियों ने हाथ रख लिया नबी को के बारे में न बताने के लिए, उसी तरीके से हमारे कुछ पंडितों ने छिपा लिया है, उंगली रख ली है गीता, वेद और रामायण पर, और मैं उनकी उंगलियों को हटाने के लिए आया हूं। मैं सिर्फ ये बताने आया हूं कि फला सफे पर, फला नंबर पे, फला पृष्ठ पर यहाँ मोहम्मद है, यहाँ मोहम्मद है, यहाँ अहमद है, यहाँ विष्णुयश है, यहाँ सुमति है, यहाँ अब्दुल्ला है, यहाँ माता का नाम आमिना है, यहाँ हसन हुसैन का जिक्र है, यहाँ काने दज्जाल का जिक्र है, यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है, यहाँ मूसा का जिक्र है, यहाँ जन्नत का जिक्र है, यहाँ जहन्नम का जिक्र है, यहाँ रमजान के रोजे रखने का जिक्र है। ये सारी चीजें वेदों के अंदर आज भी सुरक्षित हैं, आज भी महफूज हैं, लेकिन अब हमें न दिखाई दे तो इसमें कसूर किताबों का नहीं, हमारा है। एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ति नास्ति किंचन, एक ही ब्रह्मा है। ब्रह्मा ब्रह्मांड को बनाने वाला। दूसरा नहीं, नेह नाना किंचन, हरगिज नहीं, कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं जब अलीगढ़ में ये संस्कृत और हिंदी से बीए कर रहा था मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर, उस वक्त मेरे एक टीचर थे त्रिपाठी जी और तिवारी जी, दोनों संस्कृत के अध्यापक थे, टीचर। उन्होंने बताया कि नेह और नाना ये दोनों का तर्जमा उर्दू में उन्होंने करके बताया कि कतई नहीं, बिल्कुल नहीं, या हरगिज नहीं। आप भी डिक्शनरी उठाकर देख लें, नेह के माना कतई नहीं, नाना के माना बिल्कुल नहीं, यानी एकम ब्रह्मा, एक ही ब्रह्मा है। द्वितीय नास्ते, दूसरा नहीं, नेह हरगिज नहीं, नाना कतई नहीं, यानी दूसरा है ही नहीं। बाइबल क्या कहती है? देयर इज नो गॉड बट गॉड इज ओनली वन विदाउट सेकेंड। एक ही है, देयर इज नो गॉड, कोई है ही नहीं, देयर इज नो गॉड, कोई नहीं, अगर है तो कौन? तो गॉड इज ओनली वन, एक ही अल्लाह है, विदाउट सेकेंड, दूसरे को शरीक किया ही नहीं जा सकता, दूसरा है ही नहीं दूसरे की शिरकत के बगैर। ला इलाहा इल्लल्लाह, एक ही अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के अलावा कोई पूज्य नहीं कि जिसके सामने अपने माथे को टेका जा सके। ला इलाहा हरगिज नहीं है, ला इलाहा कोई नहीं है, इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के। यानी इस्लाम का ये जुमला दो टुकड़ों पर बटा है, ला इलाहा और इल्लल्लाह, ये दो जुमले जरा गौर करके देखें। ला इलाहा अलग, इल्लल्लाह अलग, जब हम दोनों को मिलाएंगे तब मुसलमान। अगर कोई आदमी ला इलाहा कहकर रुक जाए तो कायनात के रब की कसम काफिर, ला इलाहा कहकर रुक जाए तो काफिर, और जब वो इल्लल्लाह कहता है तब इस्लाम के दायरे में आता है। क्यों? ला इलाहा नहीं है कोई माबूद, ला की माना नहीं, ला इलाहा नहीं है कोई माबूद, गोया वो अल्लाह का भी इनकार कर रहा है। ला इलाहा नहीं है कोई माबूद, फिर इकरार करते हुए क्या कहता है? इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा, यानी अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। जब वो इल्लल्लाह पढ़ता है तब वो इस्लाम की कसौटी पर, इस्लाम के दायरे में, इस्लाम के अंदर वो दाखिल होता है। ये चीज हमें और आपको समझना है। हमारे हिंदू भाइयों में विभाजन कर दिया, डिवाइड कर दिया,
बांट दिया। उनके यहाँ पैदा करने वाला एक अलग, पालने वाला एक अलग, मौत देने वाला एक अलग। और रिजल्ट इसका क्या निकला कि जब सृष्टि हुई संसार की तो ब्रह्मा को पैदा करने का काम सौंप दिया, यानी जितने भी बच्चे पैदा हों तुम्हारी कृपा से। अच्छा, पैदा करना इनका काम, पालना विष्णु का, और विष्णु का अर्थ ही होता है पालने वाला। विष्णु दूसरा खुदा है। मालूम ये हुआ कि पालने वाला एक अलग है। दुनिया में जितने भी लोग खा रहे पी रहे परवरिश विष्णु कर रहा है। और शिव, इनका एक नाम है महादेव, शिव ही का दूसरा नाम है महादेव, और महादेव ही को कहते हैं शंकर जी, और शंकर ही का की पत्नी का नाम है पार्वती जी। जरा आप देखिए क्या कहा गया शिव जी का, महादेव का काम क्या है? मौत देना। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि अगर ये कोई जरूरी नहीं, अगर विष्णु पालना चाहे तो हो सकता है शिव जी ये कहना चाहें कि भाई हम तो मौत देंगे, तो फिर दोनों में झगड़ा हो सकता है। एक कहेगा मैं अभी और पालूंगा, दूसरा कहेगा नहीं इसकी वक्त आ गया मैं इसको मौत के घाट उतारूंगा। तो अब आप बताइए कि दोनों में फिर ये झगड़ा हो तो कौन फिर इसका फैसला करेगा? और हमारे हिंदू भाइयों में एक ही अल्लाह को या ईश्वर या परमेश्वर को डिवाइड कर दिया, बांट दिया, और कहने लगे आत्मा और परमात्मा एक है। यानी आदमी के अंदर जो रूह है उसी रूह को वो अल्लाह तसव्वुर करने लगे, उसी रूह को वो परमात्मा तसव्वुर करने लगे। कहने लगे कि आदमी क्या कोई बिजली का तिलक नहीं लगा है कि उसकी जबान से कोई लफ्ज निकले, ये जो बोल रहा है मनुष्य आदमी यही परमेश्वरीय शक्ति है और परमेश्वरीय जुज है। लिहाजा आदमी के अंदर जो आत्मा है वही परमात्मा है। अगर हम इसी आत्मा को परमात्मा मान लें तो जानते हो कितनी खराबियां लाजिम आ जाएंगी। इसी आत्मा को जब हम परमात्मा मानते हैं तो ये खराबी लाजिम आती है कि एक आदमी दूसरे को काटता है तो जो काट रहा है उसके अंदर भी आत्मा, और जिसको काटा जा रहा है उसके अंदर भी आत्मा, और आत्मा ही परमात्मा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि परमात्मा परमात्मा ही को काट रहा है। एक इंसान दूसरे को गोली मारता है तो मारने वाला भी आत्मा है उसके अंदर, और जिसको मारा जा रहा है उसके अंदर भी आत्मा है। इसका मतलब ये हुआ आत्मा ही परमात्मा, तो परमात्मा परमात्मा ही को मार रहा है। और इतना ही नहीं, औरत भी तो जिंदा है, औरत के अंदर भी तो आत्मा है। जब हम आत्मा ही को परमात्मा मान लें तो फिर यह मतलब लाजिम आएगा कि रात में जब एक आदमी अपनी बीवी से संभोग हम स्त्री करता है तो मतलब ये हुआ कि परमात्मा परमात्मा ही से संभोग कर रहा है। फिर माँ के पेट के अंदर एक बच्चा है, वो रोता, वो परवरिश पा रहा, आत्मा उसके अंदर भी है। इसका मतलब ये हुआ कि आत्मा ही को परमात्मा मान लें तो परमात्मा जी कहाँ है? माँ के पेट के अंदर भी है। और फिर रोते हुए वो बच्चा पैदा हो तो इसका मतलब परमात्मा जी बाहर भी आ रहे हैं माँ के पेट से। तो नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, ये खुदा ये अल्लाह दूसरों के तो हो सकते हैं, लेकिन हमें मेरा रब इन तमाम वजूद के पास कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आए नबी कह दो कि अल्लाह एक है, कुल हुवल्लाहु अहद। आए नबी कह दो कि अल्लाह एक है, अल्लाहु समद वो बेनियाज है, लम यलिद न उसका कोई बेटा है, वलम यूलद और ना वो किसी का बेटा है, यानी ना अल्लाह की कोई औलाद और ना अल्लाह किसी की औलाद। लम यलिद वलम यूलद, ना उसका कोई बेटा ना वो किसी का बेटा, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद और उसकी तरह शक्ल कोई है भी नहीं, कोई उस जैसा नहीं। लैसा कमिस्लिही शैउन व हुवा समीउल बसीर, और अल्लाह के मिस्ल कोई चीज नहीं है, वो सुनने वाला और देखने वाला है। देखिए चीज, हमारा अल्लाह बहुत पवित्र है, इन तमाम गंदे मकामात पर वो नहीं रहता। लेकिन अब बताइए, मनुस्मृति तो कहती है कि ब्रह्मा अलग, विष्णु अलग, शिव अलग, पालना अलग, मौत देना अलग, पैदा करना अलग। लेकिन हम जब ऋग्वेद पढ़ते हैं तो ऋग्वेद में हमें ये तीनों एक ही दिखलाई देते हैं। जब हम ऋग्वेद पढ़ते हैं तो ऋग्वेद में हमें ये तीनों एक ही दिखलाई देते हैं। जरा देखो ऋग्वेद की इबारत क्या वेद व्यास जी ने क्या नकल किया। वेद व्यास जी ऋग्वेद लिखते वक्त लिख रहे हैं, वेद के ये अल्फाज हैं। वेद जो हिंदू धर्म की पवित्र ग्रंथ है उसके सेंटेंस और हवाले का जिम्मेदार मैं क्या कहा? अहम ब्रह्मास्ति, अहम विष्णु अस्ति, अहम शिव अस्ति, अहम पुषा अस्ति, अहम चंद्र अस्ति, अहम सूर्य अस्ति। ब्रह्मा ने कहा, अल्लाह ने कहा, क्या कहा? अहम ब्रह्मास्ति, मैं ही ब्रह्मा हूँ।
अहम विष्णु अस्ति, मैं ही विष्णु हूँ। अहम शिव अस्ति, मैं ही शिव हूँ। यानी पालने वाला भी मैं, पैदा करने वाला भी मैं, मौत देने वाला भी मैं। अहम सूर्य अस्ति, मैं ही सूरज हूँ, यानी दुनिया को चमकाने वाला भी मैं। अहम चंद्र अस्ति, यानी चांद रात को निकलता रात निकालने वाला भी मैं, मतलब ये दिन को प्रकाश करने वाला भी और रात को उदय करने वाला भी मैं। अहम पुषास्ति, नेकियों का खजाना भी मैं, दुनिया को देने वाला भी मैं। यानी एक ही ब्रह्मा ने ये सारी बातें कह दी। मुसलमानों गौर करो, इस इबारत को जरा कुरान करीम से मिलाओ, क्या मिलती है या नहीं। हम ये नहीं कहते कि वेद की इस इबारत को कुरान के मुकाबले मिलाकर खड़ा कर दो, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि कुरान ने ये बात 1400 साल पहले कह दी है। अल्लाह तबारक व तआला की सिफत बतलाते हुए अल्लाह ने खुद बतलाया है, हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरुल लहुल अस्माउल हुस्ना। वही खालिक है, वही बारी है, वही मुसव्विर है। तमाम अच्छे अच्छे नाम उसी अल्लाह के लिए हैं। यानी खालिक बारी मुसव्विर तमाम चीजों का मालिक वही है। अहम ब्रह्मास्ति, अहम विष्णुअस्त्याम शिवस्त्याम सूर्यस्त्याम चंद्रस्त्याम पुषास्ति। मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही चंद्र हूँ, मैं ही सूर्य हूँ। रात और दिन को निकालने वाला, खजाना देने वाला, रोजी रोटी देने वाला, पैदा करने वाला, मौत देने वाला, जीवन प्रदान करने वाला और मृत्यु देने वाला, ये सारी चीजें मेरे कब्जे कुदरत में है, मेरी शक्ति में है, मेरी ताकत में है। लिहाजा मुझे ही पूजो, मेरी ही उपासना करो, मेरे ही सामने झुको। ओम निराकारम अस्ति ने आकारम अस्ति। मैं ऐसा हूँ कि मेरा कोई आकार नहीं है, मैं ऐसा हूँ कि मेरा कोई स्टेच्यू नहीं है, मैं ऐसा हूँ कि मेरा कोई फोटो नहीं है, मैं ऐसा हूँ कि मेरी कोई मूर्ति नहीं बना सकता। ऋग्वेद हवाले का जिम्मेदार मैं। क्या कहा गया? अहम निराकारम अस्ति, मैं निराकार हूँ। ने आकारम अस्ति, मेरा कोई आकार हरगिज नहीं। ने आकारम, ने आकारम अस्ति, ने मन हरगिज नहीं, ने आकारम अस्ति, और मेरा हरगिज कोई आकार नहीं, कोई रूप नहीं। लैसा कमिस्लिही, उसके मिस्ल उसकी तरह कोई चीज नहीं। मिलाइए जरा, कंपेरिजन कीजिए, देखिए आप, पता चलता चला जाएगा। लेकिन जिस तरीके से हमारे यहाँ कुछ मुसलमानों ने एक अल्लाह की वहदानियत को छोड़कर दावा वहदानियत ही क्या करेंगे, लेकिन उन्होंने अपने पेट के भंडार को भरने के लिए कब्रों पर चादरें चढ़ाने लगे और मजावर बनकर बैठ गए। ऐसे ही हमारे पंडितों ने भी मंदिरों पर एक अल्लाह की शक्ल को मस्ख करके सैकड़ों खुदाओं को की भक्ति करने वाले वो बन गए। जरा गौर कीजिए, कोई शिवाजी को पूज रहा है तो कोई शंकर जी को, तो कोई आप देखेंगे गणेश जी को पूजता हुआ नजर आएगा। इसलिए गणेश मंत्र और शिव मंत्र भी वेदों में मौजूद है। ओम नमः शिवाय, शिवाजी के लिए नमस्कार है। ओम नम करता हूँ शिवाय, शिवाजी को, यानी मैं महादेव जी के सामने झुक रहा हूँ। और एक ही जगह नहीं बल्कि शिव जी ही का एक लड़का, महादेव ही का पुत्र, शंकर ही के लड़के का नाम है गणेश। और सुनो, ये लड़का अपने शंकर के नुस्खे से पैदा नहीं हुआ बल्कि पार्वती जी के गंदे मैल और कुचैल से पैदा हुआ है। हवाले का जिम्मेदार मैं उठाओ श्रीमद् भागवत महाभारत और प्रतिशतपुरों का चौथा खंड। पार्वती जी नहा रही थी, उनके बदन से जो मैलो कुचैल निकल रहा था, उन्होंने अपने बदन के मैलो कुचैल से एक लड़का बनाया, लड़के का नाम रख दिया गणेश। उसको दरवाजे पे खड़ा किया कि मैं नहा रही हूँ, स्नान कर रही हूँ, और जब तेरे पिता अंदर कोई भी अंदर आए तो आने मत देना। वो लड़का दरवाजे पे खड़ा है, महादेव जी अंदर आते हैं, शिवाजी अंदर आते हैं। लड़के ने रोका, कहा क्यों रोकते हो? कहा मेरी माँ नहाती है। कहा मेरी माँ? तेरी माँ कौन? कहा पार्वती जी मेरी माँ। कहा पार्वती तो मेरी पत्नी, तू मेरा बेटा है ही नहीं, यहाँ कैसे तू कहता है कि पार्वती जी मेरी माँ? कहा आज ही तो मेरी माँ ने मुझे बनाया। खुदा है लेकिन दावा देखो, अल्लाह का दर्जा तो दे दिया लेकिन इल्म गैब ही नहीं है। गैब दानी देख रहे हैं आप, जरा अंदाजा लगाओ। जब लड़के ने जबरदस्ती रोका कि मैं अंदर नहीं जाने दूंगा, हिंदू भाई हो सत्यता से बताना, अगर एक शब्द भी गलत हो टोकने की इजाजत तुम्हें मैं दे रहा हूँ, एक शब्द भी गलत हो तो रोकने की इजाजत मैं तुम्हें दे रहा हूँ। सुन लो आगे गणेश जी के बारे में क्या लिखा। श्रीमद् महाभारत के अल्फाज हैं कि गणेश के शिवाजी ने तलवार उठाई और फौरन अपने लड़के की गर्दन को काट दिया, फौरन अपने लड़के की गर्दन को उड़ा दिया। गर्दन अलग पड़ी और अंदर चले जाते हैं। पार्वती जी को मालूम हुआ
कि मेरे बेटे को, मेरे पुत्र को, जिसको आज ही मैंने जन्मा था, पैदा किया था, आज ही मेरे पति ने मार दिया, तो जिद करने लगी कि जिंदा करो, जीवित करो, दोबारा जीवन प्रदान करो। अब बड़े परेशान, क्या करें? लिहाजा अपनी बीवी की जिद में यहाँ के लड़के के सर को तलाश करने लगे। ये भी नहीं मालूम कि कहाँ फेंका था। सुनो, महाभारत कहती है कि पूरे जंगल में और पूरे जो है जहां जहां मुमकिन था सारी जगह तलाश कर लिया, लेकिन जब गणेश जी का सर कहीं नहीं मिला, पार्वती जी बराबर जिद करती रही। तो ऐसे मौके पर एक हाथी आ रहा था। पार्वती जी के कहने पर गणेश जी ने हाथी का सूंड ही काट डाला और हाथी का सूंड काट के गणेश जी के उत्पन्न कर दिया, लगा दिया, और गणेश जी को दोबारा जिंदा हो गए ना। ये महाभारत कह रही है। अब हमारे ऊपर जीव हत्या का इल्जाम मत लगाना कि मुसलमान जीव हत्या कर रहे हैं, क्योंकि जीव हत्या की शुरुआत आपके यहाँ पर भी हुई है। अगर से हाथी ही सही, वो भी एक जीव था, एक जानदार था, और उसकी हत्या किसने की है वो आप जाने, लेकिन हमारे ऊपर इल्जाम मत लगाना, क्योंकि मैंने आपकी किताब से सिद्ध कर दिया। अब जरा आकर देख लीजिए और अंदाजा लगाइए। अब गणेश जी को इतना ही नहीं कि गर्दन लगा के जिंदा किया हो, बल्कि इतना बड़ा वर, इतना बड़ा इनाम भी दिया कि ऋग्वेद की इबारत है, ओम गणेशाय नमः। जब तक कोई भक्त, कोई आदमी गणेश जी की पूजा न करे, तब तक उसकी कोई भी उपासना स्वीकार ही नहीं होगी। यानी गणेश जी की पूजा करना भी अनिवार्य हो गया। ये भी ऋग्वेद में हमें मिलता है। ये शक्ल बिगड़ी हुई है, बाद में लोगों ने बहुत शक्लें बिगाड़ी हैं, और उसी ऋग्वेद में ये भी मिलेगा कि कम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते, अल्लाह एक ब्रह्मा के अलावा कोई है ही नहीं है। यानी ये भी इसके अंदर मिलेगा। तो हम अपने पंडित भाइयों से या अपने हिंदू भाइयों से कहेंगे, जरा उसकी असली शक्ल को सामने लाइए, और जो ओरिजिनल चीजें हैं उनको आप सामने लाइए। असली में डालडा कितना मिलाया गया वो तो हमें मालूम ही है, और ये चीज हर किताब के अंदर, बाइबल में भी, ज़बूर में भी, इंजील के अंदर भी, तौरात के अंदर भी बहुत सा डालडा मिलाया गया है। वो खुद उनकी इबारत के पढ़ने से पता चल जाता है, उनकी इबारत से पता चल जाता है। तो एक ये चीज थी। अच्छा, अब ये तो रहा एकेश्वरवादियत का सबूत। अब आइए जरा हम मनुस्मृति देखें। मनुस्मृति में एक और चीज लिखी हुई है कि 33 करोड़ देवताओं की उपासना करो। ये चीज बड़ी समझ में ना आने वाली है कि 33 करोड़ देवताओं की उपासना आदमी कैसे कर सकता है, जबकि मनु जी का ये वचन भी है कि एक देवता एक ही दिन में प्रसन्न होगा, दूसरा नहीं। और ये भी है कि 33 करोड़ देवताओं को प्रसन्न करना अनिवार्य है, यानी 33 करोड़ देवताओं को खुश करना भी जरूरी, अनिवार्य। और एक दिन में एक ही देवता प्रसन्न होगा, दूसरा नहीं। और ये भी आगे लिखा है, और हवाले का जिम्मेदार मैं हूं, ये भी लिखा है कि अगर एक भी देवता नाखुश रहा, अप्रसन्न रहा, तो जिंदगी भर की तपस्या भंग। बड़ा अजीब मामला है। यानी एक भी देवता प्रसन्न रहा तो जिंदगी भर की तपस्या भंग। तो अब मनुष्य के पास इतना समय तो है नहीं कि वो 33 करोड़ दिन तक जिंदा रहे। और अगर पहले मर गया तो इसका मतलब हर आदमी अधर्मी होकर मरा, तो फिर क्या फायदा? फिर हम 33 करोड़ को छोड़कर एक ही ब्रह्मा की पूजा क्यों ना करें, एक ही की उपासना क्यों ना करें? लेकिन मेरे भाइयों क्या बताऊं, यहाँ हमसे भी कहने वाले कहते हैं, और हम यहीं पर आकर मात खा जाते हैं। यहीं पर आकर मैं मात खा जाता हूं कि तुम्हारे यहाँ पर भी तो 33 करोड़ नहीं 36 करोड़ देवता हैं। मैंने कहा कैसे पूछूं? पूछा तो बताया, अरे तुम्हारे यहाँ पर भी बदायूं शरीफ, बरेली शरीफ, अछौता शरीफ, कछौता शरीफ, पता नहीं कौन कौन से शरीफ। एक है दाता शाह, एक है रिज्क देने वाला, तो एक है औलाद देने वाला, एक है जो है बेचारा मौत जिंदा शिफा देने वाला। ये अलग अलग बंटवारे हो गए। क्या बताऊं मैं, कहां कहां किस किस को समझाऊं? जरा गौर करो। कोई मदीना जाने ही नहीं देते किसी को, मदीना तक पहुंचने ही नहीं देते किसी को। कोई बेचारा यहाँ से चला भी जाए, बरेली किसी तरीके से पहुंच जाए, तो वहां जाकर कहते हैं कि अरे भाई कहाँ जा रहे हो? का मदीना। अरे भाई वहां जाने की क्या जरूरत है, यहाँ आन है, बान है, शान है, सारी चीजें हैं, और यहाँ तो बड़ा मुबारक जगह, 7 मरतबा अहमद रजा खान साहब के मजार के चक्कर लगा लो, हज अकबर का सवाब मिलेगा। ये फजीलत बता दी, बेचारा रुक लिया।
बेचारा किसी भी तरीके से बचकर अगर पहुंच कर निकल भी आया और दारुल देवबंद तक आ गया तो मत पूछो कि वहां से भी मदीना नहीं जाने देते हैं। क्या रे देवबंद कितने फजाइल मरातिब बयान करते हैं, कहते हैं कि वहां जाने की क्या जरूरत है, यहाँ पर एक ऐसा कुआं है कि जिसकी सोत आबे जमजम से मिली हुई है। क्या करूं मेरे दोस्त और बुजुर्ग को इतने फजाइल मरातिब बयान कर देते हैं। और हमने सुन लो, और अगर इस बात पर कोई आदमी मुझे मुजरिम कहता है तो कहे, हाँ मुझे अपने जुर्म का एतराफ है, लेकिन नदामत नहीं, शर्मिंदगी नहीं है। जाओ हम मुजरिम हैं। अगर इस बात पर कोई मुजरिम कहना चाहे, हमने अगर दिल में बसाया है तो सिर्फ मदीने वाले को बताया है, हमने अगर दिल से लगाया है तो इमाम कायनात को लगाया है। न हमने बरेली वाले के इस्लाम को इस्लाम जाना, न हमने देवबंद को मदीना से बड़ा मकाम दिया है, और न हमारी नजरों में इन शहरों की कोई वक़्त और इज्जत और अहमियत है। इसलिए कि हमें अल्लाह ताला ने अपना कलाम दिया, और हमें अगर मोहब्बत है तो या तो मदीना से या मक्का से, इसलिए कि हमें जो मिला है वो मक्के वाला मिला है या मदीने वाला मिला है। हम गुन गाएंगे तो उसके, गीत गाएंगे तो उसके, गीत गाएंगे तो उसके, बात मारेंगे तो उसकी, और पैर भी करेंगे तो उसकी। हमें दिल को दिखलाओ तो सही, वैसा कोई लाओ तो सही। फिर हमसे कहते हो बाद में नबी तक पहुंचोगे, पहले हमारे बुजुर्गों की मानो, पहले हमें उस जैसा कोई दिखलाए तो सही। कायनात की रब की कसम, तेरा पीर जब जमीन पे चलता है जमीन पनाह मांगती है, और मेरा पीर जब जमीन पे चलता है तो अल्लाह उस जमीन के टुकड़े की कसम खाता है। तेरा पीर जब कंबल कांधे पर रखता है, दूसरों को डर होता है कि मेरा कंबल न मांग ले। ये तेरे पीर की हाल है। मेरा पीर वो है कि अपना कंबल जब कांधे पर रखता है तो अर्श वाला उसके कंबल को मुबारक समझ कर कहता है, या अय्युहल मुद्दस्सिर, है कंबल ओढ़ने वाले, जरा दिखलाओ तो सही हमें उस जैसा, कोई लाओ तो सही। अगर उस जैसा मिल जाए तो हम मानने के लिए तैयार हैं। यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है तो दो चार आदमी आए, देख के चले गए। ताजदार पैदा हुआ था आमिना के बदन से, जब इमाम कायनात ने जन्म लिया था तो जिन औरतों ने इमाम कायनात को देखा तो देख कर चीख पड़ी कि आमिना ने जो बेटा जना है, कायनात के रब की कसम, दुनिया की कोई औरत ऐसा बेटा जन ही नहीं सकती। हमें उस जैसा लाओ तो सही, दिखलाओ तो सही, हम मानने के लिए तैयार है। तो मैं क्या बताऊं, किस किस को समझाऊं मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों। यही हमसे हमारे हिंदू भाई कहते हैं कि तुम अपने देवताओं को तो पहले मना करो, लोग मानते हैं। एक दफे अजमेर क्या चला गया देखने के लिए, तकरीरी प्रोग्राम था। लोगों ने कहा मौलवी साहब बड़ी मुकद्दस जगह है। हमने कहा मुकद्दस नहीं है, बड़ी मशहूर जगह है, चलो देख लें। तो बैरल पहुंचा। अब तो पता नहीं लोगों ने उसका नाम रख दिया अजमेर शरीफ, वरना हमने सबसे ज्यादा खड़े होकर पेशाब करने वालों को देखा तो वहीं देखा। अब पता नहीं उसको शराफत का दर्जा कैसे दे दिया। बहरहाल वल्लाहु आलम, वो उनका अकीदा वो जाने। लेकिन जब मैं पहुंचा, देखा, वहां गया तो एक आदमी कहने लगा बाल दिखलाया, इतना लंबा बाल। तो मैंने कहा क्या है? कहा मुए मुबारक। मैंने कहा किसका? कहा अल्लाह के नबी का। हमने कहा भाई दरमुद्दे तेरे पास कहां से आ गया? नमाज पांचों टाइम में से एक टाइम की ना पढ़े, दाढ़ी तेरी नहीं, मुझे तेरी नहीं, नमाज तू नहीं पढ़ता है, और तेरे पास ये कहां से चढ़ाया? कहने लगा अरे 1400 साल से बड़ा महफूज था। हमने कहा तेरे बाप दादा रखते चले आ रहे थे क्या? कहने लगा तुम हमें 5 रुपए दे रहे हो या नहीं? मैंने कहा किस बात के? कई मुबारक चीज दिखलाई। हमने कहा इससे तबर्रुक नहीं मिला, हम ही से लोगे। बोला कि वहां ये तो नहीं हो 24 नंबरी। मैंने कहा 24 नहीं 420 नंबरी हूं, लेकिन बतला तो सही की बात क्या है, 5 रुपए क्यों ले रहे हो? कहा इसलिए कि अल्लाह के नबी का बाल दिखलाया। उसने पीछे से मेरा गरीबान पकड़ा, खींचा कि 5 रुपए दो। मैंने कहा कि एक कसौटी पर मैं परखूंगा, अगर ये अल्लाह के नबी का बाल होगा। हमारे पास कसौटी है। क्या कसौटी है? मैंने कहा माचिस की तीली से जलाकर इसको जलाऊंगा, अगर जल गया तो अल्लाह के नबी का बाल नहीं, और ना जला तो अल्लाह के नबी का बाल होगा। 500 देंगे। कहा कि ये क्या आपकी कसौटी है? मैंने कहा क्यों? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो आग इब्राहिम के बाल को न जला सकी, वो रोंगटा न जला सकी, और वो बाल आग फूल बन गई। क्या मेरे नबी का बाल इतना गया गुजरा है कि आग फूल न बने? इब्राहिम से कम मकाम था मेरे नबी का। जब इब्राहिम के बाल को आग नहीं जला सकी तो मेरे बाल, अल्लाह के नबी के बाल को कैसे जलाएगी? हमने कहा 1400 साल से जब कुछ नहीं बिगड़ा, इस बाल का आंधी आई, तूफान आए, मैदान करबला हुई, जंगे सब कुछ हुई, लेकिन इस बाल बराबर चला आ रहा है, वो भी अरब वालों के पास नहीं, तेरे पास, वो भी हिंदुस्तान के अंदर। तो जब इस बाल का कुछ नहीं बिगड़ा, 1400 साल से चला आ रहा है, तो आज क्या बिगड़ जाएगा? कहने लगा कि ये 24 नंबर भाग जा, मेरे धंधे पे लात न मार। मेरे दोस्तों
मेरे अजीजों और मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, गौर कीजिए कि आज अवाम को लूटने का किस तरीके से तरीका बताया गया। अभी मैं झुलिया गया 8 नवंबर 9 नवंबर को जलसा था। 9 नवंबर को ताजा तकरीर करने के बाद फिर दूसरे दिन हमारी तकरीर कुछ देवबंदी भाइयों ने कराई, कहा कि मौलवी साहब आप कर दीजिए। और इत्तेफाक से उस वक्त देवबंदी और अहलदीस दोनों एक हो गए वहां, इसलिए कि वहां कुछ लोगों ने बड़ी बुरी गालियां दी और मुझसे तो पूछो नहीं उसने क्या कहा, क्योंकि कई दिनों के बाद 2 महीने के बाद दोबारा गया था, तो 2 महीने पहले मैं तकरीर करके आया था, तो बस मेरे ही पीछे ऐसे पड़ा है, पता नहीं वहां कोई मुजीब मुस्तफा साहब है कोई, कहा ये जर्जिसवा जगदिशवा इबलिसवा पता नहीं क्या क्या उसने एक सांस में गाली दी। मैंने कहा अल्लाह तुम्हें तौफीक अता फरमाए। कुरान के अल्फाज है कि किसी को बुरे अल्फाज से मत पुकारो, तुमने पहली मरतबा कुरान की मुखालिफत की। अगर समझाने की बात है तो तुम अपना अकीदा बयान करो, हम अपना अकीदा बयान करें, तो अपने दलाइल बयान करो, हम अपने दलाइल बयान करें, लेकिन बहावड़ा और ये सब चिल्लाने की जरूरत क्या है? तुम अपने अकीदे दलाइल के साथ बयान करो, अपना दलील और अपने अकायद दलाइल के साथ बयान करते हैं। तो बेचारा वो आया और कछौसा शरीफ की एक अंगूठी थी, उनकी बुजुर्ग की दुआ थी, उसको 30 रुपए में बेच कर गया। मैंने कहा बाकी लोगों ने बताया अरे बहुत बिकी, कम से कम 3-4 हजार अंगूठियां उसी वक्त बिक गई, और एक अंगूठी की कीमत 300 रुपए और किसी की 30 रुपए, ऐसे उसने बेचना शुरू कर दिया। और उसके बाद कहा कि जो भी आदमी इसको पहन लेगा वो मुकदमा जीत जाएगा है, और उसके ऊपर कोई बवाल नहीं आएगा, कोई लड़ाई नहीं, जो है तमाम मसाइब उसके हल हो जाएंगे। कहा मौलवी साहब आपको इसी पर बोलना है? मुझसे कहा, मैंने बड़े अच्छे अंदाज से मैंने कह दिया अल्लाह का शुक्र है कि जो आदमी 300 रुपया 30 रुपए की अंगूठी पहन ले, बुजुर्ग साहब की दुआ है, अब चाहे वो उसको पहनकर खड़े होकर पेशाब करे, चाहे वो पायखाने में ले जाए, चाहे फिल्म हॉलों में ले जाए, चाहे जो करे, ये अंगूठी इतनी बाअसर है कि किसी का असर पड़ेगा ही नहीं इस पर, हमेशा इसकी दुआ कबूल होगी। उसके बाद मैंने कहा मुसलमानों ये तो रही तुम्हारी अंगूठी जो तुम्हें देकर लोग चले गए, ये तो 300 रुपए 30 रुपए की अंगूठी थी, आओ आज मैं तुम्हें एक और ताबीज दे रहा हूँ। मैंने कहा लोगों मेरा ताबीज विदाउट रुपीज, बिना किसी पैसे के है, फ्री में है, ये ताबीज मैं दे रहा हूँ। और सुन लो ताबीज वो भी नहीं कि जो गले में लटकाया जाए, मैं वो ताबीज तुम्हें नहीं देता हूँ जो गले में लटकाया जाए। हाँ अगर तुम्हें रातों को नींद नहीं आती, ख्वाब तुम्हें बुरे बुरे दिखलाई देते हैं, तो आओ तुम्हें मैं ताबीज दे रहा हूँ, लेकिन पकी पकाई खिचड़ी नहीं देता हूँ कि बस लटका लो, नापाक रहो, खड़े होकर पेशाब करो, कुछ भी करो। हमारी खिचड़ी ऐसी है जो पकाना पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगी। सुन लो मेरा ताबीज और लेकर जाओ। मैंने कहा सुन लो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब तुम ईशा की नमाज पढ़ के सोने के लिए बिस्तर पे जाओ तो तुम अपने बिस्तर को 3 मरतबा झाड़ लो, वुजू बनाकर लेटने जाओ, और सोने से पहले तुम 1 मरतबा सूरह फातिहा, 1 मरतबा आयतुल कुर्सी, 1 मरतबा सूरह बकरा का पहला रुकू, और 1 मरतबा 4 रुकुल पढ़ लो। उसके बाद में अल्लाहुम्मा देखने का मोत वहिया, ये दुआएं पढ़कर तुम हाथों पर दम करके पूरे जिस्म के ऊपर फेर लो, पूरे जिस्म के ऊपर फेर लो, और उसके बाद में दाहिनी करवट से तुम सो जाओ। इमाम कायनात ने फरमाया, कौनैन के ताजदार ने फरमाया, फातिमा के बाप ने फरमाया, हसन हुसैन के नाना ने फरमाया कि जब ये ताबीज तुम पहन लोगे, जब ये दुआएं पढ़ के तुम सो जाओगे, तो 70,000 फरिश्ते तुम्हारी हिफाजत के लिए अल्लाह ताला तुम्हारे घर पे भेज देगा। उस रात में मरोगे तो शहादत मौत पाओगे, उस रात में मरोगे तो बिना हिसाब और किताब तुम जन्नत में दाखिल कर दिए जाओगे। मैंने कहा मुसलमानों ईमानदारी से मुझे गाली देना नहीं आती, और अगर मैं भी उनके अल्फाज उन्हीं जैसे कहूँ तो हम में उसमें फर्क क्या रह जाएगा। मैंने अपना तारीफ तुम्हें दे दिया और उसकी कोई कीमत तुमसे नहीं मांगता। अब तुम्हें कीमत वाला तारीफ पसंद हो तो जाओ उसको पहन लो, और अगर अल्लाह के नबी का दिया हुआ ये तारीफ तुम्हें पसंद हो तो उसको याद कर लो। कायनात के रब की कसम, सुनो अल्लाह गवाह है कि 4 आदमी उसी वक्त मेरे मसलक में कबूल कर लेते हैं और जमाते अहले हदीस के शेदाई बन जाते हैं। उन्होंने अहले हदीसियत को कबूल किया, कहा मेरे आलिम लूटने वाले हैं, आपने मुझे पहली बार बताया, और ऐसी बातें कोई बताता ही नहीं, अल्लाह रसूल की बातें कोई नहीं बताता। आओ मुसलमानों हम उनके बारे में दुआएं करें कि अल्लाह उनको अपने मसलक अहले हदीस पर, कुरान और हदीस पर हमेशा अमल करने की तौफीक अता फरमा, उनके दिलों पर जो और ज्यादा मजबूत ईमान उनके दिलों में पैदा फरमा दे। मुसलमानों जरा अंदाजा तो लगाओ, और हाय आज हमारी कौम को कैसे लूटा जा रहा है। ऐसे ही बिल्कुल वैसे ही हमारे पंडितों ने भी कर लिया, वो भी बेचारे हस्त रेखा बताने के लिए सड़कों पे आपको बैठे रहेंगे।
हर रेखा बताने के लिए सड़कों पे बैठे मिलेंगे, ये लकीर फला जगह जा रही है, 80 साल तक जिंदा रहोगे, कितनी बीवियां करोगे, कितने बच्चे होंगे, इतनी दुनिया अमीरी होगी। हालांकि वो बेचारा अपनी हर रेखा खुद नहीं देख पाता, इसीलिए तो सड़कों पे बैठा हुआ है, इसीलिए तो बेचारा सड़कों पे दर दर की ठोकने खा रहा है। उसको खुद अपनी हर रेखा पर एतबार नहीं, दूसरे के ऊपर दूसरे को एतबार करा रहा है। जरा गौर से इन तमाम चीजों की बुनियाद वेदों के अंदर नहीं है, मनुस्मृति में नहीं है, पुराणों में नहीं है, किसी किताब के अंदर नहीं है, लेकिन हाय अफसोस, हाय हमारी तबाही और बर्बादी, वही असर हमारे मुसलमानों के ऊपर भी चला रहा है। वही असर बिल्कुल आते हुए दिखलाई दे रहा। मैं क्या करूं मुसलमानों, काश तुमने अपने अंदर ईमान व अमल पैदा कर लिया, आका की तालीमात को तुमने अपना लिया तो तुम अपने अमल से दूर कर सकते हो। मैं समझ गया हूं, मैंने बहुत सी जगह तकरीरें की हैं, समझ गया हूं कि ये कौम तकरीरों से बाज आने वाली नहीं है, क्योंकि गाली भी देती, गुलूज भी देती है, बुरा भी लगता है। बनारस के हालात अभी आपको मालूम है क्या, वो पथराव हो रहा है, तलफिया पे हो रहा है क्या, ये कौम अब लड़ाई झगड़े पर उतर आई है। सुन लो, आपको अपने ईमान व अमल ही फिर कौम को समझाया जा सकता है। अपने ईमान को मजबूत बनाओ, अपने अमल के अंदर आगे निकलो। कायनात के रब की कसम, मुझे उम्मीद है कि जब तुम्हारे एक हाथ में रब का कुरान होगा, दूसरे हाथ में आमिना के लाल का फरमान होगा, कायनात के रब की कसम एक दिन ये झुकेंगे, सारी दुनिया झुकेगी, इसलिए कि तुम्हारे पास कुरान है, तुम्हारे पास आमिना के लाल का फरमान है। तीसरी कोई चीज तुम मानते ही नहीं, जानते ही नहीं, इसलिए आमिना के लाल का फरमान, अर्श वाले का कलाम तुम पकड़ लो। अबू जहल को भी एतराफ हो गया कि मोहम्मद से बड़ा सच बोलने वाला कोई नहीं। अबू लहब को भी एतराफ था, यहाँ तक के बड़े बड़े लोग जो गुंडे लपंगे चोर, उमर फारूक जैसा आदमी जो है, अरे बाकिल आदमी हाथ फर्क हो जाता है, इतना बड़ा बहादुर आदमी नबी की तालीम के आगे झुक जाता है। एक दिन सारी दुनिया झुकेगी, एक दिन ये लोग भी झुकेंगे, बड़े बड़े गुंडे झुकेंगे। इसलिए कि जब तुम बाजारों में जाओगे, तुम जब बाहर निकलोगे, तुम बाज़ो तबलीग के लिए जाओगे, तो दुनिया देखकर ये कहेगी कि इनसे न टकराओ, इनसे न बोलो। ये वो कौम जा रही है जिसके एक हाथ में अर्श वाले का कलाम है तो दूसरे हाथ में मदीने वाले का फरमान है। हमारे पास हाथ भी दो, हमारे पास चीजें भी दो, हमारे पास हाथ भी दो, एक हाथ में रब का कलाम है, दूसरे हाथ में मदीने वाले का फरमान है। और जिसको ये दोनों चीजें मिल गई, उसको तीसरी चीज की जरूरत ही नहीं है। हमारे पास दिल भी है, हमारे पास दिमाग भी है, और जिसके पास ये दोनों चीजें हों, दिल और दिमाग, उसको तीसरी चीज की जरूरत ही नहीं है, उसको तीसरी चीज की जरूरत ही महसूस नहीं है। हमें अल्लाह ने कुरान भी दे दिया, हमें अल्लाह ने हदीस भी दे दी, नबी का फरमान भी दे दिया। अब इसके होते हुए बताओ तो सही, हम किस चीज के मोहताज, हमें किस चीज में हमें रोक दिया है कि मुसलमानों हम अमल न करें। आओ आओ, कायनात के इमाम ने सारी चीजों को हल कर दिया, सारी चीजों को बता दिया। आओ जरा समझ कर तो देखो, बुखारी की तरफ आओ, मुस्लिम की तरफ आओ, तिरमिज़ी, नसाई, अबू दाऊद की तरफ आओ, और आओ मुसलमानों, अगर तुम्हें शक व शुबा हो रहा है, मैं आज तलकीन करने नहीं आया, एटम बम बरसाने नहीं आया, किसी को बुरा भला कहने नहीं आया। अगर मेरी बातों पर तुम्हें एतबार नहीं तो आओ आज एक बात सुन लो, और आओ ऐसी बात बता रहा हूं जो शायद तुम्हें आज से पहले तुम्हारे मौलवियों ने न बताई हो। सुन लो, आज मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूं कि तुम अपने मसलक पर रहो, हम अपने मसलक पर रहें। आप अपने मजहबी किताब बुखारी शरीफ, सब पूरी दुनिया का इत्तिफाक है बुखारी पर, और जब तक कोई आदमी बुखारी की आखिरी हदीस न पढ़ ले, उसके सर पे पगड़ी नहीं बांधी जाती, चाहे वो दारुल उलूम देवबंद हो या नदवा हो या कोई भी हो। यानी दुनिया के में जितने भी मदरसे हैं, जब तक उसमें बुखारी ना पढ़ा दी जाए, दस्तार बंदी नहीं होती, डिग्री नहीं मिलती, सनद नहीं मिलती। मैं ये नहीं कहता हूँ मेरी किताब लाओ, मैं ये नहीं कहता हूँ मेरी बुखारी लाओ, बुखारी शरीफ लाओ, दारुल उलूम देवबंद से लाओ, अशरफिया से लाओ, दुनिया में जितने मदरसे, किसी मदरसे से ले लो, देवबंद की छपी हुई ले लो, लाओ और सुन लो। अब तो उर्दू में भी उसका तर्जमा आने लगा है, अपने छापे खाने से ले लो, अपने प्रेस से ले लो, और उसके बाद में उसको पढ़ना शुरू कर दो। सिर्फ इस नजरिए से पढ़ना शुरू करो कि इमाम कायनात ने क्या कहा, फातिमा के बाप ने क्या कहा, हसन हुसैन के नाना ने क्या कहा, कैसे नमाजें पढ़ी। कायनात के रब की कसम, मेरी बात न मानो, अपने मौलवी की बात न मानो। मुझे गोली मारो, अपने मौलवियों को गोली मारो, अहले हदीसों को अलग हटाओ, देवबंदियों को अलग हटाओ, बरेलवियों को अलग हटाओ, किसी की बात न मानो, सिर्फ अपने घर से ले आओ, खुद मुताला करो, अकेले
पढ़ो, अपने आप पढ़ो और जाओ। ये मेरा चैलेंज है कि इंशाअल्लाह बुखारी शरीफ तुम्हारी किताब तुम्हारी होगी, प्रेस तुम्हारी होगी, छापाखाना तुम्हारा होगा। और जब पढ़ना शुरू कर दोगे, शुरू से आखिर तक पढ़ डालो, कायनात के रब की कदम सीधा रास्ता क्या है, सिराते मुस्तकीम क्या है, नबी का रास्ता क्या है, वो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। उससे तुम खुद आगाह हो जाओगे। नमाज कैसी पढ़नी चाहिए तुम्हें खुद पता चल जाएगा। मेरी ना मानो, अपने आलिम की ना मानो, और बुखारी पढ़ने के बाद फिर नमाज मस्जिद में जाओ और मस्जिद में 2 रकात नमाज पढ़ो। फिर अपने दिल पर हाथ रख कर कहो कि ऐ बारे इलाज, जो सही रास्ता हो उस रास्ते पर चलने की हमें तौफीक दे। मुझे अल्लाह की रात से तवक्को है, मुझे अल्लाह की रात पे भरोसा है। इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हारी दुआ रायगा ना करेगा, अल्लाह तुम्हारी दुआ बर्बाद न करेगा। तुम्हें सही रास्ता क्या होगा खुद ही मिल जाएगा, सही रास्ता क्या होगा तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। बताओ मोमिनो, हमने कौन सी गाली दी? बताओ मुसलमानों, हमने कौन सा बुरा कहा? हमने यही तो कहा ना मेरी मानो, ना अपने आलिमों की, खुद पढ़ना शुरू कर दो। उर्दू समझते हो, तर्जमा पढ़ना शुरू कर दो। अब तुम्हें ये बहकाया जाएगा कि हम समझदार नहीं है, लिहाजा किसी से समझे बगैर समझा नहीं जा सकता। अरे दीन को अल्लाह ने काम में आसान कर दिया और तुम्हारे हमारे मौलवी कहें कि मुश्किल है, समझा नहीं जा सकता। समझाने वाला चाहिए, जाहिर बात है समझाने वाला तुम्हारा, समझाने वाला तुम्हारे जैसे समझाएगा, हमारा समझाने वाला हमारे जैसा समझाएगा। फिर हम बात किसकी माने, बात किसकी बात पर अमल करें? इसलिए खुद पढ़ो, खुद फैसला करो। कायनात के रब की कसम सही रास्ता तुम्हें मिल जाएगा। बात बहुत आगे निकल गई। ये एक चीज मैंने आपके सामने रखी। तौहीद के बाद अब रिसालत का नंबर आता है। अल्लाह के नबी की रिसालत का सबूत वेदों में भी है। और अब जरा हम आपको जैन धर्म की तरफ ले जाएं। जैन धर्म की एक पवित्र ग्रंथ किताब शास्त्र। शास्त्र को आप पढ़ेंगे तो शास्त्र के ऊपर लिखा है, शास्त्र में पृष्ठ नंबर 366 से ये इबारत आपको मिलेगी कि हाय मेरे भक्त, अगर तू परमेश्वर की भक्ति नहीं कर सकता है तो ना कर, अगर तू शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता है तो ना कर। तुझे चिंता की चीज की है, तेरे लिए अरहन काफी है, तेरे लिए अरहन काफी है। अरहन का अर्थ होता है पक्षदाता। अरहन का माना होता है शिफाअत करने वाला, हिमायत करने वाला। और अल्लाह के नबी का एक नाम शफीउल मुज़नबीन भी है। आपके बहुत से नामों में एक नाम शफीउल मुज़नबीन भी है, यानी शिफाअत करने वाला, हिमायत करने वाला है। कयामत के दिन अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिमायत करेंगे, बताएंगे, सिफारिश कराएंगे, अपना सर जमीन पे टेक लेंगे। अल्लाह ताला कहेगा इरफा रासक या मोहम्मद सल तोता, अरे मोहम्मद तुम मांगो, तुम जो मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। इरफा रासक या मोहम्मद सल तोता, अरे नबी अपना सर उठाओ, मांगो जो मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर उठाएंगे और अल्लाह से मांगेंगे, अपनी उम्मत की सिफारिश करेंगे। अल्लाह आपकी सिफारिश अपनी उम्मत के हक में कबूल फरमाएगा, इजाजत देगा और आप उनको बख्शवाएंगे, जन्नत में ले जाएंगे। गौर करो मुसलमानों, शिफाअत करने वाला अरहन, अरहन हिमायत करने वाला, शिफाअत करने वाला शफीउल मुज़नबीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब आपको अंदाजा लग गया होगा कि अल्लाह के नबी जब शफीउल मुज़नबीन हुए, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ही अरहन हुए। लिहाजा सिखों की, जैनियों की किताब में अरहन का सबूत हमारे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आया है। अब आओ जरा सिखों की किताब में गुरु ग्रंथ, सिखों की किताब उठाओ, गुरु ग्रंथ, और गुरु ग्रंथ को खोलो तो गुरु ग्रंथ में भी लिखा है दहटा नूरे मोहम्मदी दहटा नबी रसूल, दहटा नूरे मोहम्मदी दहटा नबी रसूल, नानक देख कुदरत गए सभी भूल। यानी ये इबारत गुरु ग्रंथ में मौजूद है। एक मर्तबा मैं सिखों की लाइब्रेरी में, वही गुरुद्वारा था, वहां गया तो इसी पे मैं तकरीर करने लगा। सर्वधर्म सम्मेलन था तो नीचे वाली किताब वो नहीं निकाल रहा था। मैंने कहा नीचे वाली किताब निकालिए गुरुजी, उसमें लिखा है। कहने लगा कि नीचे वाली किताब तो हमारे वो गोल्डन टेम्पल में जो रहते हैं पंजाब में वो निकालेंगे, हम इतने बड़े नहीं है, वही उसको निकालते हैं।
मैंने कहा क्यों, ये किताब क्या उन्हीं के लिए है, आप लोगों के लिए नहीं है? कहने लगा कि हम नहीं निकाल सकते। मैंने कहा सिखों से, मैंने कहा सुनो, इस किताब के अंदर दाता नूरे मोहम्मदी लिखा है, सफा 485 पर लिखा है। मैं भागा नहीं जा रहा हूँ, दिल्ली में रियाजुल उलूम में मौजूद हूँ, जाओ जब चाहो तब मुझे बुला लेना, और अगर दिखला सको तो अभी लाओ, किताब निकालो, मैं दिखलाने के लिए तैयार। सारे सिख बिगड़ गए उसके ऊपर कि दिखलाते क्यों नहीं, जब अगर नहीं लिखा तो आप दिखलाइए। कहा कि इसको मैं नहीं खोलूंगा। बहरहाल उसने खोलने नहीं दिया, क्योंकि उसको मालूम था। मैंने फिर अपनी तकरीर में, अपनी स्पीच में यहाँ तक कहा कि ये आदमी गुरु ग्रंथ नामी किताब नहीं निकाल रहा है। सुनो, उसके सफा नंबर 485 पर ये इबारत लिखी हुई है, दाता नूरे मोहम्मदी, दाता नबी रसूल। और सफा नंबर 86 आप खोलकर देखें तो गुरु नानक का एक कुर्ता बना हुआ है, और गुरु नानक के कुर्ते पर सीने पर अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम लिखा है, और दाहिनी आस्तीन पर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा है, बाईं आस्तीन पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। यकीन ना है गुरु ग्रंथ निकालो, अभी हम गुरु नानक के कुर्ते की तस्वीर भी हम तुम्हें दिखलाते हैं। देखो सफा नंबर 486 पर 486 पर अगर न दिखलाऊं तो गर्दन काट देना, मेरी गर्दन उड़ा दो, मेरी मुकदमा दायर करो, केस करो, जो चाहो सजा दो, अगर न दिखला सकूं मैं। कहने लगे मौलाना अभी आप चले जाइए, जब मेरे गुरु जी आ जाएंगे तो मैं आपको बुलवा लूंगा। मैं 1 रुपया भी उनको दे आया, 1 रुपया दे आया कि लिफाफा लेके खरीद लेना, एड्रेस भी दे आया कि अगर आ जाए गुरुजी और ये इबारत न मिले तो एड्रेस पर पता लिख कर मैंने कहा कि मुझे इस पते पर बुला लेना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। मेरा 1 रुपया भी चला गया, लेकिन अभी तक जवाब भी नहीं आया। जरा आप अंदाजा लगाओ मेरे दोस्त और बुजुर्गों, आज ये सारी चीजें हो रही सिर्फ इस बिना पर कि हकीकत अवाम के सामने आश्कारा ना हो जाए, अवाम के सामने हकीकत खुल के ना जाए। ये सारी चीजें आज मौजूद है, लेकिन कोई बताने वाला नहीं। मुसलमानों, तुम अपने ऊपर भी अपने इस्लाम का मुताला भी करो, गैरों को भी बताओ, गैरों का मुताला भी करना आज के दौर में तुम्हारे लिए सबसे बड़ा हथियार बन गया है। जब तक तुम्हें दूसरों की किताबों को पढ़ने का शौक नहीं होगा, उनको समझाओगे क्या, उनको बताओगे क्या? आज इस हिंदुस्तान में 60 करोड़ हमारे हिंदू भाई ऐसे हैं कि जिनकी किताबों में हौज़े कौसर का जिक्र, जिनकी किताबों में मकामे महमूद का जिक्र, जिनकी किताबों में काने दज्जाल का जिक्र, काने दज्जाल को खत्म करने वाले ईसा मसीह का जिक्र है, जिनके किताबों में याजूज और माजूज का जिक्र, जिनकी किताबों में ज़ुल्करनैन का जिक्र, जिनकी किताबों में बाबुर रैयान जिसमें रोजदार दाखिल होंगे जन्नत के दरवाजे में उसका जिक्र, जिनके साथ जन्नत के 7 दरवाजे और जन्नत के 8 दरवाजे और जहन्नम के 7 दरवाजों का जिक्र, लंबाई चौड़ाई का जिक्र, जन्नत की नेमत और नहरों का जिक्र भी मौजूद है। और मैं सारी चीजें पढ़ चुका हूँ, इसलिए मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ कि जो इस्लाम ने बताया मिनवान वो चीजें आज भी वेदों में सुरक्षित हैं, लेकिन हाय कोई बताने वाला न मिला, हाय कोई समझाने वाला न मिला। यहाँ तक के खाने काबा का जिक्र भी है, अल्लाह के नबी मक्का में पैदा होंगे इसका जिक्र भी है, मदीना हिजरत करके जाएंगे इसका जिक्र भी है। यहाँ तक के एक जगह तो यहाँ तक आ गया शस्त्र गहरत नवीतम से सौरम, वो कल की जब इस धरती पर आएगा, अंतिम महर्षि जब इस धरती पर आएगा तो उसके पास 100 दीनार होंगे। सुन लो अच्छी तरीके से क्या कहा जा रहा है कि उसके पास 10 मालाएं होंगी, 100 दीनार होंगे, 100 दीनार होंगे, 10 मालाएं, 100 दीनार, 300 घोड़े होंगे। और ये सारी चीज आप देख लीजिए, इशारा कर रही है 10 मालाओं से मुराद, 10 मालाओं से मुराद वो अशरे मुबशरा 10 सहाबा हैं। चूंकि माला गले में डाली जाती है, कीमती चीज होती है, 10 सहाबा को आप गले से लगाए थे, यानी जिनको जन्नत में कीमती चीज आपने दी है, जन्नत में जाने की बशारत दी है। 10 मालाएं होंगी, यानी अशरे मुबशरा 10 सहाबा की तरफ इशारा कर दिया। 100 दीनार उसको दिए जाएंगे और 300 घोड़े। 100 दीनार, 100 दीनार से मुराद असहाबे सुफ़ा है, जो चबूतरे पर बैठकर तालीम हासिल किया करते थे। उनकी तालीम, उनकी तादाद 115-16। 100 दीनार से मुराद वो असहाबे सुफ़ा, और 300 घोड़े और 10,000 गायें उसके पास होंगी। 10 मालाओं से मुराद अशरे मुबशरा,
100 दीनार से मुराद साबे सुफा, 300 घोड़े उसको दिए जाएंगे। मुराद है जंगे बदर में लड़ने वाले 313 साहबे किराम जो घोड़ों पर बैठकर तलवार और तीरों से जंग लड़ रहे थे, 313 घोड़सवार मुराद है, 300 घोड़े दिए जाएंगे। यानी वो कौम 300 घोड़े रखेगी, मतलब ये है कि वो मैदान जंग में 313 साहबा मुराद है। 10,000 गायें उनको मिलेंगी, 10,000 गायों से मुराद फतेह मक्का के मौके पर वो लश्कर जिस पर अल्लाह के नबी फतेह मक्का के मौके पर आपने उनसे खिताब किया था, आपने तमाम मुजरिमों को माफ किया था, उस मौके पर आपकी तादाद, मुसलमानों की तादाद, साहबा की तादाद तकरीबन 10,000 थी। 10,000 मुराद है। ये चीज तुम्हारे वेदों में मौजूद है और यजुर्वेद में मौजूद है, लेकिन शायद तो हमें कोई बताने वाला न मिला। मेरे हिंदू भाइयों, तुम्हारी किताब है, प्रेस तुम्हारी, छापा खाना तुम्हारा, कोई मानने वाला तो हो, कोई पढ़ने वाला तो हो। और आओ जरा सुनो, कितनी बड़ी बात कह दी गई, और इससे ज्यादा बड़ी बात मैं तुम्हें क्या बताऊं, इतनी बड़ी बात कह दी गई। ये तो हिंदू धर्म की बात है। ईसाइयत में क्या कहा गया? I will pray the Father, he shall give the another comforter. After that I will not talk much with you, because the prince of this world comes, his name will be Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ईसा ने कहा I will pray the Father, मैं अपने बाप से दुआ करूंगा। He shall give the another comforter, वो दूसरा रसूल दे, मैं ये दुआ करूंगा कि वो तुम्हें दूसरा रहबर दे। Because कहा इसलिए कि I will not talk much with you, अब मैं तुमसे ज्यादा बातें नहीं करना चाहूंगा। मैं नहीं चाहता कि अब मैं तुमसे ज्यादा बातें करूं। Because the prince of this world comes, इसलिए कि इस दुनिया का सरदार आने वाला है, इस दुनिया का सरदार आने वाला है, उसका नाम मोहम्मद होगा। और एक जगह क्या कहा? His name will be Muhammad, उसका नाम मोहम्मद होगा। और एक जगह His name will be Ahmed, उसका नाम अहमद होगा। और यही चीज कुरान में ईसा अलैहिस्सलाम का कौल नकल करते हुए कहा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से क्या कहा था? इन्नी मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, ओ मेरी कौम के लोगों, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं दुआ कर रहा हूँ और अपनी कौम को बशारत दे रहा हूँ। वह मुबश्शिरन बिरसूलिन याती, मैं बशारत देता हूँ अपने कौम के लोगों को, अपने कौम को एक ऐसे रसूल की, बिरसूलिन याती, जो मेरे बाद आएगा, याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मैं बशारत देता हूँ तुम्हें एक ऐसे रसूल की जो मेरे बाद आएगा, उसका नाम अहमद होगा, उसका नाम अहमद होगा, उसका नाम अहमद है, इस्मुहु अहमद, उसका नाम अहमद होगा। कुरान ने भी यही बातें कह दी। और आगे वो सूर्य की तरह अंतिम महर्षि चमकेगा, यानी सूर्य की तरह चमकेगा। कुरान ने भी नबी को सूर्य कहा, कुरान ने भी नबी को सूरज कहा। या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। ऐ नबी, हमने आपको दाई बना कर भेजा, मुबश्शिर बना कर भेजा, नज़ीर बना कर भेजा, डराने वाला बना कर भेजा। ऐ नबी, हमने आपको अल्लाह के रास्ते की तरफ, अल्लाह के हुक्म से बुलाने वाला बना कर भेजा। व सिराजम मुनीरा, और चमकता हुआ सूरज, रोशन चिराग बनाकर भेजा। कुरान ने भी सूरज कह दिया। क्या बात है! तुम्हारी किताबों में, मेरे कुरान ने भी वही बात कह दी। सुनो मुसलमानों और मेरे हिंदू भाइयों और मुसलमानों, तुम्हारी जिम्मेदारी है, आज जो यहाँ मौजूद ना हो, मेरी कैसेटें उनके घरों तक पहुँचा दो, गैर मुस्लिमों के यहाँ पहुँचाओ, क्योंकि आज तुमसे भी ज्यादा उनको पहुँचाने की जरूरत है, उनको समझाने की जरूरत है, वरना ये 60 करोड़ अवाम हमारा गरीबान पकड़ेगी। कह दिया अल्लाह, ये हमारे मुल्क में रहते थे, हमारे यहाँ खाते थे, पीते थे, लेकिन उन्होंने हमारी किताबों में जो बातें थी वो हम तक न पहुंचाई, अपने इस्लाम की दावत को हम तक न पहुंचाया। ये कौन आपका गरीबान पकड़ेगी, इसलिए पहुंचाओ, लेकिन बड़े प्यार से, बड़ी संजीदगी से, बड़े अच्छे अंदाज से।
میرے ہندو بھائیوں، بڑے پریم سے میں تمہیں بلاتا ہوں، کتاب تمہاری ہے، ذرا دیکھو تو صحیح کیا دیا ہے. دادشیو شکل پکشے مادھوے ماسی مادھیم واچ بھوپرتی پریملا مایا مدھ شارد تب دیو مہاراج بم دت ماں گیتا مرموچ سمنجی آگ تتا تت پشے بھو نر شروع تتا دشا پرم وسم ماں گیتا وچرن نشنا چھوڑیا ہینا پرتی مگتی نرپلنگ چلو دسیو نکوٹی شونی ہنشیتی. یا اللہ مولی صاحب کی پنڈت جی سمجھ میں نہیں آتا. ہاں کچھ لوگ ایسے بھی چڑھاتے ہیں دوسرے خیال کے جو ہیں. بہرحال دوستوں بزرگوں، لیکن ہمیں فخر ہے کہ ہم نے کم سے کم اپنے نبی کے نام کو غیروں میں ڈھونڈا تو ہے، تلاش تو کیا ہے، اس لیے کہ ہمارے لیے اگر میری بات کو کوئی ہندو بھائی قرآن سمجھ کر نہیں مانتا ہے تو کم سے کم اپنی کتاب سمجھ کر آئے گا تو صحیح، ہمارے قریب تو ہوگا. ہم نے لوگوں کو بھگانا نہیں سکھلایا، ہم نے لوگوں کو قریب کرنا سکھلایا ہے. آپ میری کتاب سے نہیں اپنی کتابوں سے ہو، لیکن بات کریں گے تو عرش والے کے کلام ہی کی کریں گے، بات کریں گے تو آمینہ کے لال ہی کی کریں گے. ذرا آؤ میرے اب تیری پریس تیری اور حوالہ بھی تیرا، پڑھنے والا ایک خیر ذرا سن لو. جاؤ آج میرے ہندو بھائیوں، ایک اور چیلنج اگر غلط نکل جائے تو گردن میں کٹانے کے لیے تیار. میں جب اتنی بڑی مصیبت مول لینے کے لیے تیار ہوں تو یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اگر تمہاری کتابیں صحیح، یہ بات صحیح، تو پھر اسلام کی طرف آ جاؤ، پھر اسلام کی طرف آ جاؤ. اسلام کا دروازہ کھلا ہے. غلط ہو ہم اپنی گردن کٹانے کے لیے تیار، اتنا بڑا رشک لے رہے ہیں تو کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر صحیح ہو تو اسلام کی طرف آ جاؤ؟ کیا یہ ہمیں کہنے کا حق نہیں ہے؟ اور اسلام یہ شانتی مار گیا. اور دیکھو تمہاری کتابوں میں کیا لکھا، دادشیو میں شکل پکش مادھوے ماسی مادھیم، وہ کل کی اوتار مادھو ماس کے شکل پکش میں 12ویں تاریخ کو پیدا ہوگا. وہ کل کی اوتار مادھو ماس کے شکل پکش میں 12ویں تاریخ کو پیدا ہوگا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، تاریخ پیدائش 9 ربیع الاول ہے اور 12 بھی بتائی گئی ہے. دونوں میں ایک مت بھید و وروج ہے، لیکن مشہور اگرچہ صحیح 9 ہی ہے، لیکن پرسدھ جنم تتھی مشہور تاریخ پیدائش ہندوستان اور پاکستان میں جو رائج ہے، جس کو ہمارے دیوبندی اور بریلوی دونوں بھائی بھی مانتے ہیں، وہ 12 ربیع الاول ہے. وہ 12 ربیع الاول آپ اپنی کتابوں میں دیکھو 12 کا ثبوت ملتا ہے کہ 12 کو پیدا ہوگا. ہمارے مسلمان 12 ربیع الاول کو محمد صاحب کا جنم دن بھی مناتے ہیں، اگرچہ اس طرح جنم دن جس طرح مناتے ہیں منانے کا آرڈر نبی نے نہیں دیا ہے، آقا نے نہیں دیا ہے، امام کائنات نے نہیں دیا ہے، لیکن یہ مناتے ہیں. کیا کیا جائے میرے دوست سے بول دو، ہمارا کام تو ہے سمجھانا، صرف سمجھاؤں گا